So thanks everybody for joining. Good evening to you. Good evening, good afternoon, good morning, depending on from where you are joining. Okay. So as we do most of the times, whenever there is some major movement in the market, so we do this market analysis and we try to understand what should be the next actions, right? And obviously, a lot of things have happened in last 2 3 days. Last week particularly was very eventful. So the US CPI data, it came very bullish. So bullish for the economy, but then interestingly, what is bullish for the economy is not bullish for the markets, surprisingly, because bullish for the economy means the Fed cannot reduce the rate of interest. Fed cannot reduce the rate of interest means it is uh, bearish for the stock markets. So that is what we saw last week. So again, with notice, with intimation, with full public knowledge, on Friday, Iran announced that they are about to attack Israel, and quite interestingly and convenient for the market, the attack happened on the weekend. So again, something very strange and interesting. People are still joining. Okay, that disturbs my rhythm. Anyways, so what is the reason I'm talking about these points, because this is going to have a bearing on the market and what's going to happen next week, next couple of weeks, and what we as traders, investors, what we should do. Right? I mean, let us talk about the most important event, that is this Iran and Israel uh, war that is going on. Right? I mean, Iran attacked Israel today, and the background of that attack is that Israel had attacked the embassy of Iran out of Syria. I mean, Iran's embassy, which is in Syria, ईरान का जो embassy सीरिया में है, उसके ऊपर ईरान ने अटैक किया, which is a very major escalation, or you can say a crime for that matter, attacking some country's embassy. Okay, so it's a very serious matter, and obviously Iran had to respond to this type of attack. अगर ईरान इस type के attack के ऊपर response नहीं करता है, तो that will be seen very badly upon Iran. बट एट द सेम टाइम ईरान को पता है कि वो इसराइल के अगेंस्ट बहुत कुछ ज्यादा मेजर एक्शन नहीं ले सकता है. अगर मेजर एक्शन लेता है तो इट विल बी लाइक, इट कैन बी डिवास्टेटिंग फॉर ईरान. तो ईरान ने आज अटैक किया, एंड इफ यू आर फॉलोइंग द न्यूज, कुछ 300 मिसाइल्स और ड्रोन्स वगैरह वगैरह दे लॉन्च्ड ऑन इसराइल. एंड इसराइल का जो एयर डोम है, एयर डिफेंस सिस्टम, दैट बेसिकली इंटरसेप्टेड मोस्ट ऑफ दिस मिसाइल्स, और इसराइल को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ. तो बेसिकली हुआ ये है, द रीडिंग इज, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एनालिस्ट हियर, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ पॉलिटिकल एनालिस्ट हियर, बट द पॉइंट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट विल इम्पैक्ट द मार्केट. तो हुआ ये है कि इसराइल ने, यू कैन से, ईरान को एक थप्पड़ मारा, प्रॉपर थप्पड़ मारा उसके एम्बेसी पे अटैक करके. तो ईरान को कुछ तो एक्शन लेना चाहिए था, और उन्होंने वो एक्शन लिया, बट वो एक्शन ऐसे लेके, भाई हमने आपको थप्पड़ मारने का नाटक किया, आपको थप्पड़ तो मारा नहीं है, तो हमने, आपने हमको थप्पड़ मारा, हमने आपको थप्पड़ मारने का नाटक किया, सो लेट अस स्टॉप हियर. ओके, तो अभी बेसिकली एज वी स्पीक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, द सिचुएशन इज दैट यूएस इज सेइंग इसराइल, यूएस इज टेलिंग इसराइल कि अभी आप इसको बढ़ाओ मत, अभी जो हो गया वो खत्म हो गया, लेट अस बी एट पीस, थोड़ा इसको सेटल होने देते हैं. सिमिलरली ईरान को भी सऊदी अरेबिया या रशिया वगैरह इन लोगों का भी कहना है कि भाई ठीक है, अभी तुम्हारा जो इमीडिएट इशू था, आपने एक दूसरे को जो कुछ करना था कर दिया, नाउ लेट इट सेटल डाउन. तो इसका, द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस पॉइंट इज दैट, अगर ये यहीं पे मैटर सेटल होता है, स्टॉप होता है, तो वी मे नॉट सी मच फॉल इन द मार्केट नेक्स्ट वीक.
ओके, बिकॉज ऑफ दिस इसराइल ईरान इशू। तो इसराइल ईरान इशू जो है ये मोर और लेस अभी ऐसा लगता है कि खत्म हो गया है, और मार्केट में बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। सेकेंड इशू, एंड दैट इज एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट, कि हॉकिश फेड। ओके, लास्ट वीक में जो यूएस का जो डेटा है, वो डेटा के हिसाब से, एज पर दैट डेटा, वेदर इट इज द सीपीआई डेटा और द इन्फ्लेशन डेटा or the unemployment data, which both these data points came last week, the inflation is still high in US. Unemployment is still low in US. इसका मतलब है कि the US economy is doing good. And again, it in that scenario, in that situation, it becomes difficult for Fed to reduce the rate of interest. अगर Fed, there was an expectation, very strong expectation. I'm talking about sometime in January or February, there was an expectation that in April, Fed might reduce the rate of interest. If not in April, Fed might reduce the rate of interest in May. That was the expectation in January or February. But today, in April, as we speak, it looks like there will not be any rate reduction before October, or for that matter, in this whole calendar year, January to December, there may not be a rate reduction. So that is the possibility. And that is actually putting very high pressure on the market. Okay. If we see the fall in SPX on Thursday and Friday, we'll go to the charts. This is the major reason that the US markets are under pressure, and most of the other markets are also under pressure because of that. So that's the context of what has happened in last week and what we might expect in the next week. So let's move on. So one quote that I many times share, and very important for traders and investors: इन बुल मार्केट्स वी आर ब्लाइंड टू द रिस्क। इसका मतलब क्या है कि हमको लगता है कि बुल मार्केट चल रहा है, रैली चल रहा है, तो मार्केट बढ़ते ही रहेगा, कभी गिरेगा नहीं। दैट इज व्हाट टिपिकली पीपल थिंक एंड फील एंड ऑपरेट लाइक। सिमिलरली इन बेयर मार्केट, जब मार्केट बहुत गिरता है तो लोगों को लगता है कि यार ये मार्केट अभी कभी बढ़ेगा ही नहीं। तो बुल मार्केट में लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बेयर मार्केट में लोग बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। सो विच इज नॉट द केस। अगर आपका स्ट्रॉन्ग रैली चल रहा है तो ऑब्वियसली मार्केट कभी ना कभी फॉल होगा। अगर आपका बहुत ज्यादा फॉल चल रहा है मार्केट में तो ऑब्वियसली मार्केट रिकवर भी होगा। दैट इज ऑलवेज द फैक्ट ऑफ लाइफ, एंड दैट इज हाउ द मार्केट्स ऑपरेट। द रीजन आई एम मेंशनिंग इज दैट लोग प्रॉफिट बुकिंग करते नहीं है। जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग करते नहीं है, उनको लगता है कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा। ऑन द सेम लाइन, अगर मार्केट बहुत गिरता है तो लोग बाइंग करते नहीं है। जब बाइंग करना चाहिए तो बाइंग करते नहीं है, जब प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए तो प्रॉफिट बुकिंग करते नहीं है। So, what we are going to do, and basically to get some more proper specific understanding of what is going to happen in the market, we'll analyze SPX, the Standard and Poor major index in the US, US का जो major index है. Then we'll also look at gold, we'll also look at DXY, a dollar index, and obviously India का हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी स्टडी करना है. We'll study some important stocks in the Indian market, and I can also study or analyze some of the stocks which you people want me to look at it. आप अपने स्टॉक्स का थोड़ा 2-3 स्टॉक्स का लिस्ट बनाइए जो आपको चाहिए कि मैं उनका उसका थोड़ा स्टडी करूँ, एनालिसिस करूँ, एंड आई विल टेक सम जनरल क्वेश्चन एंड आंसर्स आल्सो. So let us head to the charts. Before we move, any question at this point of time? I can take one or two quick questions. So there is some question about gold. Gold Friday को फॉल हुआ है, although ऊपर जाना चाहिए था. What is the reason? Yeah, that's an interesting question. We'll discuss about that. So we'll start with the charts. So first of all, we'll look at SPX. Now something very weird and strange happened on Friday. Okay. I mean, something we normally don't see. If we look at the charts,
DXY, which is the dollar index, okay, dollar index painted a full green candle, kind of a breakout. I mean, this type of bullish candle in dollar, this, by the way, this is a daily chart. This type of bullish candle on dollar is quite strange and rare. I mean, what it indicates is that forget rate hike, it indicates that Fed is going to increase the rate of interest. That is something which normally it indicates. And if we look at gold, now अगर war like situation चल रहा है तो ideally gold बढ़ना चाहिए. अभी somebody asked me the question about gold, but instead of going down, instead of going up, Friday को gold गिरा. Okay, gold गिरा, DXY बढ़ा, which is again fine. अगर DXY बढ़ता है, डॉलर बढ़ता है, तो गोल्ड गिरना एक्सपेक्टेड है. ओके, बट गोल्ड भी गिरा और उसके साथ में यूएस मार्केट भी गिरा. ओके, एंड वी ऑल्सो सॉ देयर वाज अ फॉल इन क्रूड ऑयल. ये जो WTI है, दिस इज द क्रूड ऑयल इंडेक्स. सो क्रूड ऑयल ऑल्सो फेल. नॉर्मली क्या होता है कि स्टॉक्स गिरते हैं, क्रूड ऑयल गिरता है, और अगर गोल्ड भी गिरता है तो दैट इंडिकेट्स दैट देयर विल बी रेट हाइक फ्रॉम द फेड. सो दैट इज ऑन द वन साइड. बट अगर हमें इसराइल और यूएस वॉर का अगर इश्यू देखते हैं, तो आइडियली यहाँ पे गोल्ड बढ़ना चाहिए था और क्रूड ऑयल भी बढ़ना चाहिए था. सो क्रूड ऑयल का भाव बढ़ना चाहिए था और गोल्ड का भी भाव बढ़ना चाहिए था. तो प्रॉबली द लार्ज मार्केट ऑपरेटर्स, जिनको हम लोग वेल्स बोलते हैं, या द पीपल हु एक्चुअली मूव द मार्केट, उनको शायद एंटिसिपेशन है कि ये इसराइल और ईरान का इशू कुछ बढ़ने वाला नहीं है, तो देर इज नो रीजन फॉर गोल्ड एंड क्रूड ऑयल प्राइस टू इंक्रीज. अभी इंसिडेंटली आज markets band hai, we are on Sunday, so we cannot see the impact of all these activities on gold and crude, but we'll come to know on Monday. But then Friday को जो पैटर्न डेवलप हुआ है, उससे तो यही दिखता है कि वॉर का कुछ मैटर सीरियस नहीं है, बट फेड रेट हाइक या फेड का जो हॉकिश स्टांस जिसको बोलते हैं, इट लुक्स लाइक अ सीरियस मैटर. एंड दैट्स द रीजन वी आर सीइंग दैट डॉलर इंडेक्स इज गोइंग हाई and stock is going down, and also your crude oil is going down. But one small anomaly here, this bond yield, US 10-year bond yield, it also fell. अभी ये फिर से थोड़ा सरप्राइजिंग है, कॉन्ट्राडिक्टरी है. अगर आपका डॉलर बढ़ रहा है, ओके, अगर आपका डॉलर बढ़ रहा है तो यूएस बॉन्ड यील्ड भी बढ़ना चाहिए था. यूएस बॉन्ड यील्ड गिरा है और डॉलर बढ़ा है. अगेन अ वेरी serious contradiction. We do not really know what is going to happen on Monday, or what is going to happen in the next coming Monday, Tuesday, Wednesday, or overall next week. बट मेजर इंडिकेटर तो यही भी दिख रहा है कि ये वॉर का जो इश्यू है ये सीरियस नहीं है, और फेड का हॉकिशनेस जो है वो बढ़ने के चांसेस है. देयर माइट बी एन अनाउंसमेंट और समथिंग दैट इस साल रेट रिडक्शन नहीं होगा. ओके, सो दैट्स व्हाट द ग्लोबल charts on Friday, that is what they are indicating. All this we have to understand, all these macro factors we have to understand to get hold of what is going to happen in the market overall. Okay, हम लोग अगर सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी देखते हैं तो उससे हमको उतना क्लियर पिक्चर नहीं पता चलेगा. Now let's go to the SPX levels itself. Okay, now if we look at the one day chart of SPX, it is kind of close to the support. ये pink line जो आप देख रहे हो, this is a 51-day EMA, and normally ये as a support act करता है. So if all goes as per what we are seeing on Friday, ये pink line को touch करना सही चाहिए. Monday will be red for most of the markets, Indian market, European market, US market, and Tuesday onwards we should see the recovery. So that's what I am expecting here from the SPX chart. But अगर ये level जाता है, okay, एंड दिस इज लाइक अराउंड 5100, अगर ये लेवल जाता है तो फिर उसके बाद में बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, एंड इट कैन गो ऑल द वे अप टू 5000 ऑल्सो, और बिलो 5000. सो इन दैट केस द फॉल विल बी मच मोर सीवियर, बट वी हैव टू सी वन लेवल एट अ टाइम. अगर ये 5000 होल्ड करता है, या 5100 होल्ड करता है, तो मेजर कुछ इशू नहीं होगा मार्केट में.
तो DXY ऑलरेडी वी ऑलरेडी लुक्ड एट दिस, इसने ब्रेकआउट दिया है। इसका मतलब है कि ये और ऊपर जाने के चांसेस है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो stocks, as I said, Monday stocks will be in red, and DXY itself will be further going higher. But towards Tuesday, we might see some cool off in the DXY. ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट गोल्ड पे भी रहेगा, और ये गोल्ड का जो बेरिश पैटर्न बना है फ्राइडे को, वो कंटिन्यू होगा, एंड मंडे ट्यूसडे वी माइट सी गोल्ड आल्सो टू बी बेरिश. In the meanwhile, I want to look at charts of Israel. Okay, now this TA35 is Israel index, and this is today's chart. By the way, the Israel market is closed on Friday and Saturday, and it opens again on Sunday. So that gives us some idea about the movement for next week. Okay. So if we look at this, and as I'm saying, look basis the charts, ये इशू कुछ ज्यादा बड़ा दिख नहीं रहा है इसराइल और ईरान का. So the drop in Israel is only 0.17%, which is nothing. Normally भी इतना drop आ जाता है मार्केट में. तो Israel market has more or less recovered. And this is the live data, Sunday's data. Israel market is operating on Sunday. Another chart that we want to look at, this is Saudi Arabia chart. Again, they are operating on Sunday. तो सऊदी अरेबिया का चार्ट तो ऑलमोस्ट ग्रीन हो रहा है. तो ये ईरान और इसराइल का मैटर मोर और लेस सॉल्व हो गया ऐसा लग रहा है फ्रॉम द चार्ट्स. ओके. सो नेट नेट समरी ग्लोबल मार्केट का ये लग रहा है कि मंडे तक शायद मार्केट रेड रहेगा. ट्यूसडे ऑनवर्ड्स और इनफैक्ट टुवर्ड्स एंड ऑफ मंडे वी माइट सी रिकवरी इन द मार्केट्स. गोल्ड का जो है, मैंने पहले भी बोला था कि इफ डॉलर इज गोइंग हायर और ये वॉर का सिचुएशन अगर पुल ऑफ हो गया है, अगर वॉर का सिचुएशन एस्केलेट नहीं होगा, तो गोल्ड विल रिमेन अंडर प्रेशर, गोल्ड विल रिमेन बेरिश. गोल्ड ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस कम है, या नीचे जाने के चांसेस हाई है. नाउ लेट अस लुक एट निफ्टी. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस. ओके, सो निफ्टी मेड ऑल टाइम हाई लास्ट वीक, एंड ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई बनने के बाद में मार्केट डाउन तो जाता ही है, जाना ही चाहिए. कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग होता है, इट्स क्वाइट नेचुरल. तो जो नॉर्मली अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो जब भी कोई हाई बनता है तो उसके बाद में जो नीचे ड्रॉप आता है, वो नीचे ड्रॉप जो आता है वो प्रीवियस ऑल टाइम हाई को टेस्ट करता है. ओके, सो प्रीवियस ऑल टाइम हाई वाज क्लोज टू 22,500, और ये ऊपर जाने के बाद में 22,800 ऑलमोस्ट इसने टच किया. 22,500 पे आके ये रुका है फ्राइडे को. बट आई थिंक इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट विल गो फर्दर डाउन. और जो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा है, विच इज अराउंड 22,300, 22,300 तक मंडे या ट्यूसडे को निफ्टी आना चाहिए. दैट इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज. तो मैंने फ्राइडे को, हमारा जो ग्रुप है आरजेएस अल्फा, लॉट ऑफ यू आर पार्ट ऑफ दैट, मैंने फ्राइडे को बोला था कि आप शॉर्ट पोजीशंस लो, लॉन्ग्स अवॉइड करो. मंडे को जिन्होंने भी शॉर्ट पोजीशन लिया है फ्राइडे को, दे विल गेट गुड बेनिफिट ऑन मंडे. तो ऑल इन ऑल निफ्टी का यहाँ पे 22,500 का सपोर्ट हो जाएगा. 22,300 तक रुकना चाहिए. अगर 22,300 भी जाता है तो नेक्स्ट लेवल जो है इसका, इट इज अराउंड 22,100 और 22,000, एंड इट इज ऑल्सो कोइंसाइडिंग विद द ईएमए. ओके, वन डे 51 ईएमए विच इज 22,090. तो 22,090 या 22,000 टू 22,300, ये 300 पॉइंट के रेंज में सपोर्ट एस्टेब्लिश होगा, एंड दैट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टॉक्स ऑल्सो. फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग यू माइट टेक लॉन्ग विद hedges अराउंड 22,100, और स्टॉक्स का बाइंग विद टाइम होराइजन ऑफ 1 to 3 months यू कैन डू, नॉट अ प्रॉब्लम. बैंक निफ्टी का अगर हम देखते हैं, तो इफ यू नोटिस हियर, जैसे एसपीएक्स में मूवमेंट हुआ है,
right? I mean, SPX was red on Wednesday, so Nifty was red on uh, Friday, right? बिकॉज नॉर्मली हम बोलते हैं कि भाई अभी इंडियन मार्केट बहुत स्ट्रांग चल रहा है, ग्लोबल मार्केट का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट वैसा नहीं है. ऑल्दो इंडियन मार्केट इज स्ट्रांग, बट फिर भी ग्लोबल मार्केट में जो इवेंट्स होते हैं उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट इधर भी आता ही है. वी कैन नॉट अवॉइड दैट. दैट्स द रीजन वी आई नॉर्मली फर्स्ट ट्रैक द ग्लोबल मार्केट्स एंड देन वी सी हाउ इट विल इम्पैक्ट द इंडियन मार्केट. बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी ऑल्सो मेड अ हाई. इट मेक अ न्यू ऑल टाइम हाई लास्ट वीक. बट ये कैंडल अगर हम देखते हैं तो दिस इज अ बेरिश कैंडल, दिस इज एन इन्वर्टेड हैमर पैटर्न. तो अभी ये ऑल टाइम हाई को इतने जल्दी ब्रेक नहीं करेगा. मोस्टली नेक्स्ट वीक विल बी रेंज बाउंड फॉर बैंक निफ्टी. दिस इज अ वीकली कैंडल इफ यू कैन सी. अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, वी कैन लुक एट द सपोर्ट फ्रॉम 4 आवर्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 48,100, 48,100 भी अच्छा सपोर्ट है. मोस्टली मंडे को 48,100 हम लोग देखेंगे. 48,100 टच होना चाहिए. एंड इफ 48,100 गोज इफ एट ऑल, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट विल बी क्लोज टू 47,200. सो 47,200 टू 48,100 इस रेंज में बैंक निफ्टी का स्टेबल होगा. बिकॉज वी नो बैंक निफ्टी इज हाईली वोलेटाइल इंडेक्स और इसमें रेंज भी काफी ज्यादा होता है. सो दैट्स दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. आई मेड अ समरी हियर फॉर एवरीबॉडीज रेफरेंस. तो निफ्टी का जो क्लोज है 22,520 है. द नैरो रेंज दैट वी आर लुकिंग फॉर निफ्टी, the narrow range that we are looking for Nifty is 22,300 to 22,800. ऑलमोस्ट अभी 22,500 जो है, सो 500 पॉइंट्स का नैरो रेंज इज देयर. एंड इफ वी लुक एट अ ब्रॉडर रेंज 22,000 टू 23,100, सो अराउंड 1100 पॉइंट्स का ब्रॉडर रेंज इज एक्सपेक्टेड इन निफ्टी. सो द मार्केट इज गोइंग टू बी वोलेटाइल नेक्स्ट वीक, क्वाइट वोलेटाइल. तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को बहुत केयरफुली इसमें ऑपरेट करना पड़ेगा. और बैंक निफ्टी का अगर देखते हैं तो 48,500 विच इज द करंट लेवल, करंट क्लोज. तो 48,000 इज द इमीडिएट सपोर्ट. और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 49,500 है. अगर 48,000 ब्रेक होता है तो 47,250 विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट. सो ओवरऑल अगर हम रेंज देखते हैं फॉर नेक्स्ट 1 or 2 वीक्स और फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एक्सपायरी, 47,250 टू 49,500, दैट इज द ब्रॉडर रेंज दैट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर बैंक निफ्टी. ओके, एनी क्वेश्चन हियर? ये लेवल्स ध्यान में रख के आप लॉन्ग्स ले सकते हो, शॉर्ट्स ले सकते हो. मोस्टली द मार्केट इज गोइंग टू रिमेन वोलेटाइल, सो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स यानी इंट्राडे वगैरह थोड़ा अवॉइड कीजिए. इट विल बी वेरी रिस्की. स्टॉक्स आप बाय कर सकते हो विथ टाइम होराइजन ऑफ 1 to 2 months. देयर विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्विंग स्टॉक ट्रेड्स. व्हेन आई से स्विंग स्टॉक ट्रेड्स, विद होराइजन ऑफ वन मंथ 2 मंथ आप स्टॉक्स का बाइंग कर सकते हो. विल टेक अ लुक एट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन इंडियन मार्केट. वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स टेक अ क्विक लुक देयर. So you look at the major stocks. So let us start with Reliance. Reliance obviously is the heavyweight stock, but then it is consolidating. Last week it has spent mostly consolidating, although it has been making good moves, but it went down towards mid of April. After that, it has given some rally, and but it was not able to cross the March high. So even in so it is struggling to cross the March high. So it is quite possible that it will again test this level of 2,900 or 2,800 for that matter. So Reliance up, you can still buy around 2,800 with a target of around 3,000 and 3,300. So overall, it's bullish. Reliance is bullish, which shows that the Indian market will be
द निफ्टी विल बी मोर और लेस कंटिन्यू टू बुलिश, बट देन रेंज बाउंड एक्शन है तो वोलेटिलिटी काफी रहेगा. लुक एट अदानी. वन डे चार्ट अगेन समवॉट सिमिलर टू रिलायंस. रेंज बाउंड एक्शन चल रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है. इसका जो मार्च का हाई था, इट इज स्ट्रगलिंग टू क्रॉस द मार्च हाई. मार्च हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा है. 3300 या 3350 का जो लेवल है, अगर वो क्रॉस होता है तो अदानी एंटरप्राइजेस में हम लोग काफी स्ट्रॉन्ग मूव देख सकते हैं. अगेन इफ यू लुक फ्रॉम द स्विंग ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, अराउंड 3100 बाय कर सकते हैं विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 3000, 3300. So Reliance is range bound, Adani Enterprises is range bound. Let us look at HDFC Bank, the largest banking stock. Not surprisingly, the bad times for HDFC still continues. It tried to do some good movement in April, but then again it has started falling, and it might go down again towards 1450. Right, it made a high of 1550, but again it looks like it is heading towards 1450. अगर किसी को बाय करना है स्विंग ट्रेड के लिए तो 1450 के आसपास आप लोग HDFC बैंक बाय कर सकते हैं. एंड सेकंड लेवल टू बाय फॉर HDFC विल बी अराउंड 1350. So 1350 to 1450, in that range HDFC bank can be bought with a target of let's say around 1600, and the previous high of around 1700. So 1550 and 1700, those can be the targets for HDFC bank. Stop loss obviously will be the previous low, and that is around 1300. ICICI Bank, let us look at it. So, in contrast to HDFC Bank, ICICI Bank is quite bullish. So, ICICI Bank में आप fresh positions भी ले सकते हो अगर आपको थोड़ा cautious करना है. तो you can wait for some drop around 1050 भी आप buy कर सकते हो. But overall, the chart is very bullish for ICICI Bank, and I think it's overall headed towards 1350. If not immediately or next 2-3 months, अगर market रेंज बाउंड रहता है या बुलिश रहता है तो डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक विल क्रॉस 1300. सो दैट्स माय एक्सपेक्टेशन ऑन आईसीआईसीआई बैंक. लेट अस लुक एट टीसीएस, द आईटी बेलविदर, द इंपॉर्टेंट स्टॉक इन आईटी. अभी टीसीएस का रिजल्ट बहुत अच्छा है. इफ यू आर फॉलोइंग द रिजल्ट्स, सैटरडे द रिजल्ट फॉर टीसीएस केम डाउन एंड इट वाज वेरी गुड. आरजीएस अल्फा, आई हैड गिवन अ बाय कॉल फॉर टीसीएस अराउंड 3900. तो ये 3900 से 3845 तक गया था, बट अभी ऑलरेडी 4000 है, and it's quite easily it will cross 4150 and even 4300 for that matter. So TCS again, like ICICI Bank, TCS में भी लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन कर सकते हैं आप. फ्रेश पोजीशन ऐड कर सकते हो. अगर आपको थोड़ा कॉशियस करना है तो आप यू कैन वेट फॉर 3900. ओके. सो अगर मार्केट काफी गिरता है मंडे ट्यूसडे को बिकॉज ऑफ दिस जियो पॉलिटिकल इश्यूज एंड ऑल, तो ये 3900 तक जा सकता है. अदरवाइज टीसीएस में ड्रॉप होने के चांसेस कम है. Let us look at the manufacturing stocks. Tata Motors. Tata Motors ने मार्च में काफी ड्रॉप दिया था. इट वेंट डाउन ऑलमोस्ट टू 900. उसके बाद में इसने रिकवरी दी है, 10-15% का रिकवरी हुआ है. सो टाटा मोटर्स कंटिन्यूज टू बी बुलिश, बट ओवरऑल लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो इट इज कंसोलिडेटिंग. बट यू कैन होल्ड योर लॉन्ग पोजिशन. अगर आपको ऐड करना है तो थोड़ा वेट कीजिए. आई थिंक इट विल अगेन फॉल टूवर्ड्स 990 और 930. 950 टू 990 इस लेवल में इसको बाय कर सकते हैं विद द इनिशियल टारगेट ऑफ 1050. एंड मे बी अगर मार्केट बुलिश रहता है तो 1200 तक भी जा सकते हैं. लेट अस लुक एट मारुति, द कॉम्पिटिटर फॉर टाटा मोटर्स. नाउ मारुति मेड अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ऑन 20th of March. इट ब्रोक दिस लेवल ऑफ 11750 और यहाँ से इसने काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिया. एंड देन नाउ द प्रॉफिट बुकिंग हैज स्टार्टेड. सो अगेन इट कैन टच दिस प्रीवियस हाई अराउंड 11,700. मारुति सुजुकी आ सकता है. अगर 11,700 पे आता है तो यू कैन बाय मारुति सुजुकी अराउंड 11,700. अगर ये ऊपर जा रहा है टुवर्ड्स 13,000 तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए. आई मीन डोंट एक्सपेक्ट मारुति सुजुकी टू गो टू 20,000 और 25,000.
ये अभी कंसोलिडेट करेगा बिटवीन 11,000 टू 13,000। इस रेंज में आपको स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हो। So these are some of the stocks that I wanted to cover because these more or less give us the direction of the market. If you want me to look at couple of stocks from your side, so you can put it in the chat box. I will take a quick look. Okay, Asian Paints, Infosys, JL. Okay, we'll look at that. Let's look at Asian Paints. अगर ऑयल का प्राइस गिरता है, क्रूड ऑयल का प्राइस गिरता है, तो दैट विल बी पॉजिटिव फॉर एशियन पेंट्स। ओके, तो एशियन पेंट का काफी फॉल हुआ है। इफ वी लुक एट द चार्ट, इट हैज टच्ड दिस येलो लाइन। ओके, yellow line is the 201 EMA on weekly, which is big. The last time Asian Paints touched this yellow line, it was long, long, long back. My goodness. 2000, 2009 के बाद में एशियन पेंट्स ने ये लाइन कभी टच नहीं किया था। ओके, सो इट शोज दैट it's under some pressure. Okay, because of which it has dropped so much. अभी सम प्रेशर ऐसा है कि इफ यू नो, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, द आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी, द ओनर ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट, they have entered into paint business, and it is expected that they will give tough competition to Asian Paints in the paint business. So that is the reason this stock is under pressure. But all said and done, it's a very good stock. तो अभी आप उसको लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हो। आई विल से कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 2700। 2700 का स्टॉप लॉस आप रख के आप इसको होल्ड कर सकते हो। बट देन अभी इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट्स नहीं आएंगे, आई मीन बहुत ज्यादा अपसाइड्स नहीं आएंगे। इफ यू आर होल्डिंग इट अराउंड 3,300, अराउंड 3,600, यू शुड बुक प्रॉफिट हियर। और आपको 2700 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 2700 अगर जाता है ना, तो दिस कैन गो ऑल द वे अप टू 2300। तो ऑलमोस्ट 10-15% ड्रॉप और हो जाएगा इसमें। ओके, सो दैट्स अबाउट एशियन पेंट्स। देयर वाज अनदर क्वेश्चन अबाउट HAL, Houston Aeronautics. Okay, so HAL is in a very bullish trajectory. Okay, तो अब इसमें लॉन्ग होल्ड कीजिए। अगर आपके पास में, अगर आपको ऐड फ्रेश पोजीशन ऐड करना है, तो यू माइट वांट टू वेट फॉर 3370 और सो। अराउंड 5%, 10% ड्रॉप कोई भी स्टॉक में आ सकता है। 3370 के आसपास आप इसमें फ्रेश पोजीशन ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास में ऑलरेडी है तो यू कैन जस्ट होल्ड इट। इट्स गोइंग क्वाइट हायर। तो आई थिंक ओवरऑल ये अराउंड 4500 की तरफ जा रहा है। सो 4500 इज समथिंग दैट वी कैन लुक फॉर HAL। देयर इज अ क्वेश्चन ऑन Infosys। लेट अस लुक एट Infosys। अभी ये TCS का जो रिजल्ट अच्छा आया है सैटरडे को, इसका इम्पैक्ट TCS के ऊपर भी होगा। Lot of large IT companies will be bullish because of the TCS result. तो जस्ट लाइक TCS, इसने भी लास्ट वीक में या लास्ट कपल ऑफ वीक्स में बेरिश पैटर्न बनाया है। ओके, लुक फ्रॉम द सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज एट गुड सपोर्ट। दिस इज द 2 वीक्स 51 EMA। सो TCS यहाँ पे ऐड करने में कोई हार्म नहीं है, डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। एंड यू कैन कीप अ टारगेट ऑफ अराउंड 1650 और 1700 फॉर Infosys। तो आप ऐड कर सकते हो करंट लेवल्स पे।
Okay. So we discussed TCS, Asian Paints, and some of the larger stocks. As I always tell you, ये आपको हमेशा याद रखना है stocks buying के वक्त. There are other stock requests which are coming up. आप ये अपना RGS Alpha में डालिए. I will look at those stocks separately. I will not be able to discuss all the stocks right now. But this important guideline you follow when you are buying the stocks, always buy them in 1:2 ratio. पोजीशन साइज आपको हमेशा 5 to 15% ऑफ द पोर्टफोलियो रखना है. डाइवर्सिफाई कीजिए. डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. एकदम बहुत ज्यादा फंड्स किसी एक सिंगल स्टॉक में मत डालिए. ऑलवेज बुक प्रॉफिट एट T1 एंड T2. ऑलवेज कीप अ टारगेट लेवल ऑफ T1 एंड T2. अभी इसमें क्या होता है कि बहुत बार लोग जल्दी बेच देते हैं तो फिर उनको पैनिक हो जाता है. तो वैसा मत कीजिए. कीप 2 टारगेट्स एटलीस्ट. तो आप टारगेट 1 में बेचते हो, उसके बाद में आपका स्टॉक ऊपर जाता है तो आपके पास में टारगेट 2 है. इनकेस आपका स्टॉक नीचे आता है तो आपने ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है. तो इन बोथ द केसेस यू विल बी सेफ एंड यू विल बी हैप्पी. सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी while you are doing trading and investing. सिमिलरली स्टॉप लॉस भी आपको फॉलो करना चाहिए. अगर आप स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करोगे तो अगेन दैट कैन बी वेरी पेनफुल. अगेन गोइंग बैक टू द एशियन पेंट एग्जांपल. वेयर इज आवर एशियन पेंट? आई जस्ट शो यू how the stop loss can make a difference. मैंने आपको बोला कि एशियन पेंट में आपको ये 2700 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है. अगर आप 2700 का स्टॉप लॉस नहीं रखोगे तो इट कैन गो ऑल द वे अप टू 2300. अगर यहाँ पे आप पोजीशन क्लोज करते हो, भले ही लॉस में क्लोज करते हो, एटलीस्ट अगर 50% आप पोजीशन क्लोज करते हो, लेट से आपके पास में 100 स्टॉक्स है, अगर आपको 100 के 100 नहीं बेचना है स्टॉप लॉस पे, एटलीस्ट 50 बेच दीजिए. तो अगर ये 2300 पे आता है तो यू विल बी एबल टू बाय अगेन एट 2300. ओके. सो दैट वे यू कैन प्रोटेक्ट योर कैपिटल. एंड ये भी जो भी आपका यहाँ पे लॉस हुआ था वो लॉस आप यहाँ पे 2300 पे बाय करके you can recover that loss. So all these guidelines are very important when you are managing your portfolio and when you are developing your portfolio. तो इसको करोगे आप तो आपका लॉसेस का प्रोबेबिलिटी कम है और प्रॉफिट बनाने का प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो जाता है. So most of you are already part of RGS Alpha. If you are not a part of RGS Alpha already, तो I request you to join it. आपके फ्रेंड्स को, कलीग्स को भी आप इसको ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हो. वी कीप ऑन गिविंग लॉट ऑफ market updates here, right? So people who are there, they already know that just by following the group, people are able to make some good profits. So all said and done, I have shared a lot of information with you. अगर किसी को प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये सब आपसे खुद से नहीं होगा, तो वी हैव डिफरेंट प्रोफेशनल सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ऑन प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस, एडवाइजरी सर्विसेज, quarterly fixed return services, training services obviously are there. You can avail all of them. Okay. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस है तो ये आरजीएस अल्फा ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए. यहाँ पे ग्रुप में आप क्वेश्चन डालिए. आई विल एक्सप्लेन देम. इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम वी मे नॉट बी एबल टू कवर मच फर्दर. डेफिनेटली इसको ज्वाइन करके आपके एडिशनल क्वेश्चंस आप यहाँ पे डालिए. एंड दीज आर माय कोऑर्डिनेट्स. प्लीज फॉलो मी ऑन ट्विटर. आई कीप ऑन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन ट्विटर ऑल्सो. यूट्यूब चैनल है. दिस वीडियो रिकॉर्डिंग विल कम ऑन यूट्यूब, सो प्लीज उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. So that's it from my side, friends.